حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. محبت کرتے ہیں ہماری گھروں میں ہماری اولادوں کے نام، ہمارے باپوں کے نام احمد علی، محمد علی، علی، حسین، حسن، عائشہ، فاطمہ آج بھی ہم رکھتے ہیں، سکینہ رکھتے ہیں، آل بیت کے نام رکھتے ہیں، صحابہ کے نام بھی رکھتے ہیں، آل بیت کے نام بھی رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر اور علی کی دشمنی قطعاً نہیں تھی. آج مورخ غلط کہہ رہا ہے. حضرت عمر اور علی کی دشمنی نہیں تھی، بلکہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر بن خطاب سے ہوئی تو عمر بن خطاب تو علی کے داماد بنے، فاطمہ تو زہرا کے داماد بن گئے. تو یہ اگر دشمنی ہوتی تو یہ رشتہ کیسے ہو جاتا؟ یہ ساری غلط باتیں ہیں جو تاریخ میں غلط لوگوں نے لکھی ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپس میں دشمن تھے یا آپس میں مہربان تھے؟ اللہ کا قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ زور سے بولیے. پارہ 26 محمد الرسول اللہ، اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور اب ان لوگوں کا ذکر ہم کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ہر وقت ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو، پچھلے بھی بولے اور زور سے. کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ والذین معہ، کہ محمد تو ہمارا رسول ہے لیکن ہم ان کی بات اب تمہیں بتاتے ہیں. والذین، جو لوگ معہ نبی کے ساتھ ہیں، نماز میں، سفر میں، حضر میں، جہاد میں، ہجرت میں، تبلیغ میں، ایمان میں، دنیا میں، آخرت میں، جنت میں، یہ نبی کی معیت سے جدائی نہیں ہے. اشداء علی الکفار، ان کی ایک خوبی یہ ہے یہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ کسی کی رعایت نہیں رکھتے، چاہے ان کا باپ بھی رسول کے مقابلے میں آئے یہ اس کو بھی اڑا دیں گے، ان کا بھائی نبی کے مقابلے میں آئے اب یہ اس کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے. اس لیے کہ انہوں نے اب صرف ایک اللہ کو اور رسول کو پہچانا ہے، باقی رشتوں کو یہ کل عدم کر دیتے ہیں. اگر ایمان کے مقابلے میں آ جائیں ان لوگوں میں ایک تو یہ کمال ہے رحماء بینہم. اب یہ وہ چیز ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے آپس میں رحیم اور کریم ہے، شیر و شکر ہے، مہربان ہے، بھائی بھائی ہیں. اب یہ آپس میں ایسے ہیں کہ جو جاہلیت کی دشمنیاں تھیں بنو امیہ اور بنو ہاشم کی وہ کل عدم ہو گئی ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس لڑی میں پروئے جا چکے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ کہتا ہے رحماء بینہم ہے. تاریخ کہتی ہے ابو بکر اور علی دشمن ہے، تاریخ کہتی ہے عمر اور علی دشمن ہے، تاریخ کہتی ہے عثمان اور علی دشمن ہے، تاریخ کہتی ہے صحابہ اور اہل بیت دشمن ہے، اور اللہ کہتا ہے رحماء بینہم. دشمنی ہے ہی نہیں، پیار ہے، محبت ہے، اور نفرت ہے ہی کوئی نہیں، عداوت ہے ہی کوئی نہیں، بھائی بھائی ہیں، شیر و شکر ہے، رحیم اور کریم ہے، مہربان ہے. تو ایمان سے بتاؤ تاریخ سچ کہتی ہے یا اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے؟ اس کتاب میں جو شک کرے اس کا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. تاریخ تو کافر بھی لکھتا ہے، مسلمان بھی لکھتا ہے، تو ان کی باتوں کا کیا اعتبار؟ جو تاریخ قرآن کی آیتوں کے مطابق ہے اس کو ہم لیں گے، اور جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے اس کو ہم آگ میں ڈال دیں گے. تاریخ پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، اللہ کے قرآن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت دشمن تھے یا آپس میں دوست تھے؟ زور سے بولو. تو وہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، وہ باتیں مت سنا کریں، اس سے آپ کا ایمان خراب ہوگا. دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حسن و حسین کو حضرت عثمان غنی کے پہرے پر کھڑا کیا دروازے پر. جب شہادت سے پہلے ان کے گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا. آپ پوچھ لیجئے علماء سے، آپ چیک کیجئے، پوچھے کہ جن نوجوانوں نے حضرت عثمان غنی کا پہرا دیا تھا کہ دشمن دروازے سے داخل نہ ہو سکے، خلیفہ وقت تک ہم دشمن کو نہیں پہنچنے دیں گے، ان میں کون کون تھے؟ ان میں آپ کو حسن حسین کا نام نظر آئے گا کہ حضرت علی نے حکم دیا تھا کہ بیٹا آپ نے کھڑے ہو کے سیدنا عثمان کی جان کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ آخری شہادت کا وقت ہے. اگر دشمنی ہوتی علی ان کی خاطر اپنے بیٹوں کو کیوں کٹانے کے لیے کھڑا ہوتا کہ جو آئے گا پہلے میرے بچوں کو مار دے گا؟ اور وہ تو ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے، ان کے اندر رحم نام کی چیز نہیں. تو اتنے مشکل وقت میں علی نے حسن و حسین کی جان کی قربانی کیوں دی ہے؟ اگر عثمان سے دشمنی ہوتی تو کیا اپنے بچوں کو کھڑا کرتے؟ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ ان کی محبت تھی، دشمنی نہیں تھی. پھر حضرت علی کے ہاں حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے حسن حسین، زینب اور ام
कुलसूम, ये वो औलादें हैं जो हजरत फातिमा से पैदा हुई। लेकिन जब हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ रसूलुल्लाह की वफात के 6 माह बाद, तो हजरत अली ने कई और शादियां भी की हैं। अब उनसे जो बच्चे पैदा हुए, हजरत अली ने फातिमा के बाद, सैयदा फातिमा के बाद जो शादी की, उसमें से जो पहला बेटा हुआ उस बेटे का नाम अबू बकर रखा है। क्या रखा है? और जो दूसरा बेटा पैदा हुआ उसका नाम उमर रखा है। आप गूगल में चेक कर लें। सवाल यह है, वो तो दुनिया से चले गए, दुश्मनी होती तो बेटे का नाम दुश्मन के नाम पे कौन रखता है? आप अगर समझते हैं नहीं रखना चाहिए तो फिर आप भी अपने एक बेटे का नाम अबू जार रख लें, एक का नाम सदर बुश रख दें, एक का नाम वजबाई रख लें, शैतान भी रख लें, कारून हामान भी रख लें। अगर आपका ईमान 14 सदियों बाद इतना गैरत वाला है कि आप अल्लाह के दुश्मन के नाम पे नहीं रखते, तो फिर हजरत अली के ईमान का क्या आलम होगा कि वो अपने बेटे का नाम भी अबू बकर रख रहे हैं, बेटे का नाम उमर रख रहे हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, इमाम हसन और हुसैन के जो बेटे पैदा हुए उन्होंने भी अपने बेटों का नाम अबू बकर रखा है। और करबला में जो 72 शहीद हुए, आप वो फहरिस्त पढ़ें, उसमें अबू बकर हुसैन इब्न अली का भाई भी है जो मैदान में कटा है। आज अली का बेटा हुसैन तो याद है, अली का बेटा अबू बकर जो मैदान करबला में कटा है वो क्यों भूल गए? वो 72 पूरे नहीं होते जब तक उनका जिक्र ना किया जाए। अल्लाह ताला सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में शामिल फरमा दे। जोर से कहो आमीन। इसलिए जो सहाबा के दुश्मन है उनकी तकरीरें मत सुने, उनकी वीडियो क्लिप ना देखें, वो आपके दिल में ऐसा कीड़ा और जरसीम डालेंगे कि ईमान एक लम्हे में पहली किक से उड़ जाना है और दोबारा वापसी कभी नसीब नहीं होगी। इसलिए ऐसे लोगों की सोबतें मत इख्तियार करें। आप अल्लाह के कुरान पर, नबी के फरमान पर, उलमाए अहले सुन्नत के बयानात पर फोकस करें, बाकी दाएं बाएं की चीज़ों को छोड़ दें। तो मैं अर्ज करता हूँ, हर सहाबी में खुसूसियत, मेरे नबी ने फरमाया तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा रहम दिल उम्मत के हवाले से मेरा सहाबी अबू बकर है। बहुत नरम दिल आदमी है और कमाल रहमत है इसमें। और फरमाया तमाम सहाबा में काफरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा सख्त मेरा सहाबी उमर बिन खत्ताब है। और मेरे तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान गनी है। और मेरे तमाम सहाबा में सबसे बड़ा काजी और जज जिसमें फैसला करने की सलाहियत और इस्तेदाद सबसे ज्यादा है, वो मेरा सहाबी अली उल मुर्तजा है। ये मेरे नबी के वो जजमेंट है जो आपने पेश की और बाद में ये साबित हुई। मैं 2-3 मिसालें दे के बात खत्म करता हूं। आज भी जितने जज हैं दुनिया में, हजरत अली की कज़ा को पढ़े बगैर वो इस मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। कैसे? मिसाल सुनिए। और आज भी रियाजी के उसूलों पर जब हजरत अली के फैसले को देखा जाए अकल दंग रह जाती है। 3 बंदे आए हजरत अली के पास, कहने लगे हमारे 17 ऊंट हैं और हम बंदे 3 हैं। कितने बंदे हैं? जोर से। और ऊंट कितने? ये हमारे दरमियान आपने तकसीम करने हैं। किस तरह कि एक बंदे का आधा हिस्सा है, एक बंदे का तीसरा हिस्सा है 17 ऊंटों में, और एक बंदे का 9वां हिस्सा है। बराबर हिस्से नहीं है। एक बंदा हम में से आधे ऊंटों का मालिक है। अब ज़ाहिर बात है अगर 17 का आधा करें तो ये 8.5 बनता है, एक ऊंट काटना पड़ता है। फरमाया तकसीम ऐसे कर दे कि कोई ऊंट काटना ना पड़े, ऊंट भी पूरे पूरे रह जाए और तकसीम भी कमाल की। और आपका फैसला हम आपसे करवाना चाहते हैं कि हमारा माली नुकसान ना हो। आज भी कोई बताए ना कैसे मुमकिन है? इसलिए कि जब आधा देंगे 8.5 होगा, एक ऊंट से बेचारा कुर्बान हो जाएगा। अब हजरत अली की जहानत देखें। मेरे नबी ने फरमाया फैसलों में सबसे बड़ा फैसला करने वाला और काजी कौन है? जोर से बोलो। ये हजरत अली के अदालत में हजरत अली ने फरमाया ठीक है बैठ जाओ, 17 ऊंट खड़े कर दो। खादिम को कहा बैतुल माल से सरकारी एक ऊंट लाओ, इनके साथ खड़ा कर दो। 17 ऊंट ये और एक बैतुल माल वाला, ये कितने हो गए? ऊंचा बोलो। कितने? 18। तो फरमाया जिसका आधा है वो कौन है? उसने कहा जी मैं हूं। फरमाया 18 का आधा कितना होता है? बोलो। 9 इसको दे दो, तुम साइड पे हो जाओ। पीछे कितने बच गए? 9 बचे ना, तवज्जो रखना जरा। तो फरमाया जिसका तीसरा हिस्सा है वो आ जाए। अब तीसरे हिस्से वाले को जब बुलाया तो उसके कितने बनते हैं? 18 में से 6 तिये 18, तो कितने बने? बोलो। 6। फरमाया तुम ये 6 ले लो। अब पीछे कितने बचे? बोलो। एक तो बैतुल माल का है, वो तो नहीं दे सकते ना, वो तो दे ही नहीं सकते। हजरत अली ने फरमाया तेरा कितना है? उसने कहा हजरत मेरा 9वां हिस्सा है। तो 9 दूने 18, 18वें का 9वां कितना बनता है? बोलो। उसको 2 दिए और जो बैतुल माल वाला था वो दोबारा वहीं जाके बांध दिया।
कैसी अजीब बात है। फरमाया ये बैतुल माल वाला वहां छोड़ आओ और ये सारा इंसाफ भी हो गए। अक्ल की इंतहा है, अल्लाह की कसम। इस तरह फैसला करते थे कि लोग अंदर से मुतमईन हो जाते थे। दो बंदे आए हजरत अली के पास, उन्होंने कहा हमारे दरमियान झगड़ा है, फैसला कर दीजिए। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने अल इस्तिआब के अंदर यह वाक़या लिखा है, फैसला कीजिए क्या मसला है। कहा मैं और ये दोनों सफर पे जा रहे थे, हम दोनों बैठे खाना खाने के लिए। मैं अपने साथ जो खाना लाया, मेरी रोटियां थी 5 और इसकी थी 3, तो ये 5 और 3 को रोटियां कितनी बन गई 8, और हम बंदे कितने 2, इसकी 5 और मेरी 3 रोटियां, और हम खाना खाने लगे। एक और बंदा गुजरा, हमने कहा आप भी आ जाएं। अब वो भी बैठ गया, उसने भी शुरू से आखिर तक खाना हमारे साथ खाया। खाना खाने के बाद जब वो जाने लगा, उसने हमें 8 रुपए दिए, 8 दिरहम, कि ये ले ले, और वो चला गया। अब ये शख्स हजरत अली की अदालत में आया, कहने लगा मेरे साथ ज्यादती हो रही है। कहा कैसे? कहा ये मुझे 3 दिरहम दे रहे और खुद 5 रख रहे। कहते हैं मेरी 5 रोटियां थी, आपकी 3, लिहाजा 5 रुपए मेरे बन गए और 3 आपके बन गए, तो मेरे साथ ये ज्यादती है। मैं ये कहता हूं कि उसने हम दोनों को 8 दिए, तो आधे इसके और आधे मेरे। उसने ये नहीं कहा तेरे 3 और उसके 5 हैं। मजलिस में बराबरी है, ये इंसाफ नहीं कर रहा। आप मेहरबानी करके इंसाफ करें। हजरत अली ने जब ये बात सुनी, फरमाया अगर इंसाफ हुआ फिर तुझे 3 नहीं मिलेंगे, तुझे 1 मिलेगा। कितने? बोलो। ये 3 ले ले, फायदे में रह जाएगा। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा 1 कैसे बनता है, आप मुझे समझाएं। फरमाया जब फैसला होगा तो फिर नाफिज होगा, उसके साथ और तेरा 1 बनता है। कैसे? कहा सुन मैं तुझे समझाता हूं। और वो ऐसे, इसकी रोटियां थी 5 और तेरी थी 3, और 1 रोटी को 3 बंदों ने मिलकर खाया है। कितने बंदों ने? इसकी 5 रोटियां तो 5 थी, ये 15 टुकड़े तो इसके हो गए, और तेरी 3 रोटियां तो 3 थी, ये 9 टुकड़े तेरे हो गए। 15 और 9 को जमा करो, ये बनते हैं 24, और 24 को 3 हिस्सों में तकसीम करो। 1 हिस्सा तूने खाया है, 1 तेरे साथी ने, और 1 उस मुसाफिर ने। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो कहा अब जब 3 को आप डिवाइड करोगे 24 को 3 पे, तो ये 8 बनता है। गोया कि 8 टुकड़े तूने खाए, 8 उसने खाए और 8 इसने खाए। उसने कहा बिल्कुल समझ आ गई। तो कहा फिर अगला मसला तो बहुत ही आसान है कि तेरे कुल टुकड़े ही 9 थे, 8 तो तू अपने खा गया, तेरा तो 1 टुकड़ा उसने खाया है, इसका तो 7 वो खा गया, लिहाजा तेरा 1 रुपये है और इसके 7 बनते हैं। ईमान से बताओ हजरत अली के बारे में जो जजमेंट मेरे नबी ने की थी, सही की थी या गलत की थी? एक और मुकदमा आता है उस्ताद जी। यमन का एक शख्स है, यमन का, वो अपने लड़के को कूफा भेजता है किसी काम के लिए, और अपने गुलाम को भी साथ भेज देता है। अब ये जा रहे हैं, रास्ते में आपस में झगड़ा हो गया। कूफा में जब पहुंचे तो जो गुलाम था उसने वहां जाके शोर कर दिया इस लड़के के बारे में कि ये मेरा गुलाम है, मैं इसको बेचना चाहता हूं। हालांकि ये लड़का गुलाम नहीं है। कहा मैं इसको बेचना चाहता हूं। बड़ा मसला बन गया ऐसी पोजीशन में कि या अल्लाह ये क्या सूरत हाल है। तवज्जो कीजिए, अर्ज क्या करता हूं। अब वो कहने लगा ये मेरा गुलाम है, इतने पैसों में बेचता हूं, कोई लेता है। ये बच्चा था। यह मुकदमा हजरत अली की अदालत में चला गया। आप कूफा में थे, कहा इनको पकड़ कर ले आओ। उस बच्चे ने कहा हजरत मैं आजाद हूं, मैं गुलाम नहीं, ये हमारा गुलाम है, ये जरा ताकतवर है और मुझे बेचना चाहता है। वो कहता है नहीं मैं आजाद हूं, ये गुलाम है। अब दोनों इस बात पे खड़े हैं, एक कहता है ये मेरा गुलाम है, वो कहता है ये मेरा गुलाम है। तो फैसला कैसे होगा? हजरत अली ने अपने खादिम को बुलाया, कहा ये सामने कमरे, इसकी दीवारों में 2 बड़े बड़े सुराख करो जिसमें से इन दोनों का सर आगे की तरफ निकल जाए, बाहर की तरफ। अब वो सुराख हुए। फरमाया कि दोनों का सर बाहर निकालो, पीछे से रस्सियों से बांध दो। अब इसका सर भी बाहर निकाला, उसका सर भी बाहर निकाला, और खादिम को कहा रसूलुल्लाह की तलवार लेकर आओ और जो गुलाम है उसकी गर्दन को उड़ा दो। अब जब ये जुमला बोलो और वो तलवार लेकर आया, तलवार ऐसे करने लगा तो जो असल में गुलाम था उसने सर पीछे कर लिया। हजरत अली ने फरमाया ये गुलाम है और वो आजाद है। समझ आ रही है? कितना अजीब बात है। ऐसे ऐसे फैसले के आज की दुनिया का कोई जज तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब आखिरी बात करता हूं। एक बंदा मरने लगा, उसने एक शख्स को, अपने दोस्त को 10,000 दिरहम दिए।
کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا بیٹا سفر پہ ہے، جب وہ آ جائے تو جو تم چاہو اس میں سے اس کو دے دینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بندہ مر گیا، اس کا بیٹا سفر سے آیا، دوست نے بتایا ابو مر گئے، یہ 10,000 درہم اس نے دیے، اور اس نے کہا جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ تو اس نے کہا یہ 1,000 آپ لے لیں۔ کتنے؟ وہ سیانا ہے نا، 9,000 آپ پہ رکھنا ہے تو 1,000 سب پہ دینا ہے۔ اس نے کہا جو تم چاہو لے لینا، باقی اس کو دے دینا۔ اس نے 1,000 اس کو دیے۔ اب اس نے کہا یہ کیا ظلم ہے، پیسہ میرے باپ کا ہے۔ یہ مقدمہ حضرت علی کے پاس چلا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا ادھر آؤ، کیا بولا اس کے باپ نے؟ کہا اس نے کہا جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ کہا ٹھیک، اس کو کتنے دینا چاہتے ہو؟ کہا 1,000۔ کتنے؟ کہا 1,000 تمہارا ہے اور جو 9,000 ہے وہ اس کا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا انہوں نے یہ کہا تھا جو تم چاہو، تو تم نے تو 9 چاہے ہیں نا، وہ اس کے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم نے تو 9 چاہے ہیں نا، جو تم چاہو تو تم نے تو 9 چاہے ہیں، تو لہٰذا یہ 9 اس کے اور 1,000 تم نے نہیں چاہا، وہ تمہارا ہے۔ اور حضرت علی نے کمال کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبور کو منور فرمائے اور ہمیں سچی محبت ان سے نصیب فرمائے۔ وما علیہ